हम लोग सब लाइव हो गए जी। तो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करिए। ক্রিয়েটিভ ডান্স ওয়ার্কশপ 2000 সাল থেকে 2020 পর্যন্ত তার এই দীর্ঘ যাত্রাপথে নানান উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। শুধুমাত্রই নৃত্য চর্চা কেন্দ্র হিসাবে, মানে নাচের স্কুল হিসাবে নয়, নৃত্য চর্চা কেন্দ্র হিসাবে এটাকে গড়ে তোলার প্রয়াসটা সারা জীবন আমরা করেছি। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা এতদিন মানুষের সামনে ছিলাম, অনুষ্ঠান করেছি, ওয়ার্কশপ করেছি, প্রত্যক্ষত মানুষের সহযোগিতাতে, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, তাতে করে এই মুহূর্তে সবার সামনাসামনি আর হওয়ার কোনো সুযোগ এই মুহূর্তে নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে এই প্ল্যাটফর্মটাকে আমাদের বেছে নিতে হলো। ক্রিয়েটিভ ডান্স ওয়ার্কশপের পেজ, ডিজিটাল পেজে বেছে নিলাম এমন একটি বিষয় বেছে নিয়ে যার উপরে আলোচনা। সেটা কেন, কি বিষয়, কেন আমরা এই ভাবনাটা ভেবেছি, এই বিষয়ে আমাদের ক্রিয়েটিভ ডান্স ওয়ার্কশপের পরিচালিকা ডক্টর শেরি পাল বলবেন। তো আমাদের সাথে আজকে আছে, তবে শুরুতে এই সময় একটা কথা বলে নি। গতকাল থেকে আমাদের এই লাইভটা হওয়ার কথা ছিল, কিছু টেকনিক্যাল ফল্ট এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ চলে যাওয়ার জন্য আমরা গতকাল লাইভে আসতে পারিনি। তো গতকাল লাইভ আমাদের সাথে সুমনের করার কথা ছিল, আমরা পারিনি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা পারিনি, কিন্তু আমরা তাতে হতাশ হইনি। আজকে আমরা সেরাইকেলা ছৌয়ের প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব শশধর আচার্যজিকে পেয়েছি, এবং আরো দুদিন আমাদের এই আলোচনাটা চলবে। তাতে আরো দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তারা আলোচনা করবেন আমাদের এই বিষয়, নৃত্য ও নাট্য, এটার কোথায় সীমানা আছে, সীমারেখা আছে অথবা নেই, এটা নিয়ে। এবং আমরা আবারও আসবো, সুমনকে সঙ্গে নিয়ে আবারও আসবো আমাদের এই তিনজন বক্তার বক্তব্যের শেষে। পুরো বিষয়টাকে নিয়ে আমরা কম্পাইলেশন করব। তো আজকে আমরা আমাদের এই আলোচনা চক্রে যাওয়ার আগে আমি ডক্টর শেরি পালকে অনুরোধ করছি শশধর আচার্য সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। नमस्ते शशधर जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ছৌ নৃত্য গুরু শ্রী শশধর আচার্য সেরাইকেলা ছৌয়ের প্রবাদ প্রতিম একজন শিল্পী। তার খ্যাতি ছড়িয়ে আছে দেশ ছেড়ে বিদেশের গণ্ডিতেও। সেরাইকেলা ছৌ নৃত্যে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি সঙ্গীত নাটক একাডেমির সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। আমার চোখে দেখা এই মানুষটি শুধু উচ্চতরের নৃত্যশিল্পীই নন, তিনি যথার্থ অর্থে একজন শিক্ষকও বটে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে যখন আমি তিনটে স্টাইলের ছৌ নৃত্যধারা নিয়ে গবেষণা করছি, তখন নানা কাজে আমাকে সঙ্গীত নাটক একাডেমিতে যেতে হয়েছে বহু। প্রতিটা সময় তার থেকে এত সহযোগিতা পেয়েছি। নানা সময় উনি যেভাবেই বলেছি আমাকে নানা কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন, দেখিয়েছেন, বিভিন্নভাবে হেল্প করেছেন। শুধু তাই নয়, যখন আমি ফিল্ড ওয়ার্কে গেছি সেরাইকেলা কাজের জন্য, এই গবেষণার কাজে, ওনার বাড়িতে থেকে উনি এবং ওনার ভাই, মানে ভাইয়েরা, তারাও নৃত্যশিল্পী, ছৌ নৃত্যশিল্পী, বিভিন্নভাবে আমাকে এই কাজে সহায়তা করেছেন। এছাড়া উনি যখন কলকাতায় এসছেন সিসিআরটি এক্সামিনার হয়ে, স্বল্প পরিসরে, ওনার হাতে বেশি সময়ও নেই, আমার ডাকে উনি সাড়া দিয়ে আমার ওয়ার্কশপে এসে উনি আমার শিক্ষার্থীদের কিছুক্ষণের জন্য ভাব, রস এবং সেরাইকেলা স্টাইলের ওপরে এত সুন্দরভাবে একটা ছোট ডেমনস্ট্রেশন দিলেন। আমি তো অভিভূত। মানে উনি শুধু শিল্পী নন, উনি খুব বড় মাত্রার একজন শিক্ষকও। আমার সবসময় তাই মনে হয়েছে ওনার থেকে আমি এখনো শিখি। চিরকাল, মানে যতদিন উনি শিখিয়ে যাবেন আমি বোধহয় শিখবো। তাই আমার আজকে গুরু
শাশ্বধার আচার্যের কাছে আমি আসছি। তিনি তার সেরাইকেলা স্টাইলে আমাদের যে আজকের ওয়েবিনারের মূল বক্তব্যটি সেটা হচ্ছে নৃত্যা এবং নাট্য। সেরাইকেলা ছৌতে আপনি এটা কি করে দেখান, মানে কি করে আপনি ডিফাইন করেন যে কোনটা কি, কিভাবে করেন, সেইটা যদি একটু বুঝিয়ে দেন। নমস্কার। আমি বাংলা বলি কিন্তু খুব ভালোভাবে বাংলা বলতে পারবো না। হিন্দিতে বলবো, হিন্দিতে খুব ভালোভাবে বলতে পারবো, ঠিক আছে? ओके। छाऊ नृत्य की जब शुरुआत होती है, किसी भी नृत्य का जब शुरुआत होती है, वो किसी एक जगह में, किसी एक खास व्यक्ति समूह और किसी ना किसी कारणवश नृत्य की उत्पत्ति होती है। और उस नृत्य की जब उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति के साथ साथ उस नृत्य की अभिप्राय, उस नृत्य का जो लोग इस नृत्य को आगे बढ़ाते हैं उनकी अपनी अभिप्राय, वो सारे निहित चीजें नृत्य के अंदर में छुपी रहती है। सरायकेला छाऊ की सृष्टि जब हम पीछे जाते हैं तो 1205 एडी में जब पहला डायनेस्टी सिंहभूम डायनेस्टी स्थापित हुआ सरायकेला में, तब से इसका शुरुआत बोलकर माना जाता है। और ये आर्ट फॉर्म राजाओं के युद्धशाला से, योद्धाओं से, यानी कैंटोनमेंट से शुरुआत हुई है और कैंटोनमेंट से योद्धा लोगों का चीजों को लेकर एक आगे चलकर एक डांस फॉर्म बना। तो इसका जो बेसिक टेक्निक है या जो कुछ भी है वो सब नेचर से, नेचुरल मूवमेंट से प्रेरित की गई है। चाहे वो चाली हो, चाहे वो हुफली हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पद चालना, मतलब बेसिकली जितनी भी टेक्निक लिया गया है ये सारे चीज नेचर और नेचुरल मूवमेंट से ली गई। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि किसी भी डांस जब शुरुआत होती है और जब डेवलप होकर चलती है, समय के हिसाब से उसको हम लिखना शुरू करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले प्रैक्टिकल है, उसके बाद शास्त्र है। प्रैक्टिकल पहला होता है, उसके बाद शास्त्र होता है। अब जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक में सरायकेला की छाऊ कहाँ बैठता है ये मैं आपको बताता हूँ। नृत्य और नाट्य, ऐसे तो जितने डांस फॉर्म है सभी डांस फॉर्म नाटकीय ढंग से आगे और पीछे और कथा सुनाने से शुरुआत हुई। आप देख लीजिए जितने ही भारत में डांस फॉर्म है, केवल छाऊ की बात नहीं कर, सारे डांस फॉर्म ऑलमोस्ट सब कथाकार ट्रेडिशन से ही निकला हुआ है। बाद में वो मंदिर में चले गए, चाहे वो गाने के स्वरूप में हो, चाहे वो डांस के स्वरूप में हो, चाहे वो बातचीत हो, वो बाद में धीरे धीरे चली गई। छाऊ से जो पहले योद्धा लोग थे, योद्धा लोगों ने भी अपने योद्धाश्रम लाघव करने के लिए उनके पास जो चीजें था वो अपनी खुशी के लिए वो करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, चीजें इवॉल्व होती गई, लोग आते गए, जुड़ते गए और जुड़ने के बाद जो चीजें निकली और जुड़ने के बाद जैसे धीरे धीरे चीजों की समावेश होती है। ऐसे आपको पता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो आसपास के सारे चीजों को एडप्ट करने की कोशिश करता है, ग्रेव करता है, छीनता है, पूरी नहीं छीनता है, थोड़ी थोड़ी छीनती है, लेकिन उसमें भी जानना जरूरी हो जाता है जिन लोगों ने इस बच्चे को पालन करा उन लोगों ने इस बच्चे को क्या क्या ज्ञान दिया छाऊ को। तो ये डिपेंड करता है कलाकार के ऊपर, आर्टिस्ट के ऊपर कि किस ढंग से अपनी कला को वो सजाता है। मूलतः क्या होता है कि नृत्य जो होता है उसमें सब होता है, सब है। नाट्य की पूरी स्वरूप जो है उसमें है,
लेकिन जब अभिनय दर्पण आया या अभिनय दर्पण को हमने पढ़ने की कोशिश किया या अभिनय दर्पण से हम अपनी डांस को तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश किया, तब मुझे ऐसा लगा कि छऊ बाकी नृत्यों से अलग है। क्यों अलग है? कि इसकी जो टेक्निक है, आप अगर गौर करेंगे, इसकी जो टेक्निक है, इसकी टेक्निक को कहा जाता है फरीखंडा। और फरीखंडा में है क्या? फरीखंडा को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटने से चाली, उफली और खेल, ये 3 चीजें पहली आती है। बाद में पद चालना आता है, उड़ने का जंप आता है, घूरा आता है, भ्रमरी आता है, वो चाहे जमीन पे हो चाहे आकाश पे हो, भ्रमरी आता है। वो शास्त्र के हिसाब से बाद में जब हम जाते रहते हैं, जब हम पढ़ते हैं शास्त्र के हिसाब से, तो पता चलता है कि ये तो ये है, ये है, ये है। लेकिन मुझे ऐसा एहसास होता है कि जिन लोगों ने इन सब चीजों को एकत्र कर इस डांस फॉर्म को बनाया है, उनको नहीं पता था कि नृत्य क्या है, नृत्य क्या है और नाट्य क्या है। उन्होंने अपनी खुशी के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए उन्होंने चीजों को बनाते गए और चीजें बनती गई। अब हम आते हैं कि शास्त्र में क्या चीज है और छऊ में क्या चीज है। जो पहला है NRITT, नृत्य, तब उस पे क्या होता है कि आप थिएटर के कॉन्सेप्ट में जाइए, डांस के कॉन्सेप्ट में जाइए, कि एक स्पेस में एक मूवमेंट क्रिएट करना है, विदाउट साउंड, विद साउंड, विदाउट म्यूजिक, विद म्यूजिक। स्पेस की बात आती है। जब स्पेस में हम कोई चीज को करते हैं और उसमें कोई कैरेक्टर नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई थीम नहीं, तो वो प्योर डांस होता है। और प्योर डांस जो होता है वो टेक्निक होता है। यहाँ गड़बड़ क्या है कि कुछ चीजों को छोड़कर हमारी सारी टेक्निक जो है वो थीमेटिक है। जैसे बाघ चाली, अरे टाइगर वॉक बोलते हैं हम, बाघ चाली। एक कैरेक्टर आया, उसका एक अपना चरित्र है, उस चरित्र में एक स्टोरी लाइन है। बाघ चाली, बाघ किस तरह से चलता है या बाघ किस तरह से अटैक करता है। अब देखिएगा, ऐसे जितना उफली है, चाली है और खेल है, अटैक और डिफेंस में तो योद्धाओं का खेल है ना। योद्धा कैरेक्टर तो आया ना, जहां कैरेक्टर आया वो थीम हो गया। तो सारा चीज हमारा टेक्निक में भी आधे से ज्यादा चीज थीमेटिक है। तो केवल हमारे यहाँ 2 तरह की टेक्निक चलती थी सरायकेला में साइमल्टेनियसली। एक तरफ चल रहा था फरीखंडा और एक तरफ चल रहा था टुईला पकड़कर, कुछ पैरों का काम था, कुछ शरीर का काम था। अगर टुईला पकड़कर उस पैरों का काम को, टुईला की शरीर के काम को देखेंगे तो वो NRITT है, नृत्य। तब बाकी जितनी टेक्निक है, अब बात होती है बॉर्डर लाइन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई बॉर्डर लाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हमको कला को दर्शाना है, दिखाना है, कला से खुशी प्राप्त करनी है, कला से आध्यात्मिकता की ओर बढ़नी है। अगर हम उसको बॉर्डर लाइन पे बांधे जाएंगे तो कलाकार अपनी फ्रीनेस से वो काम नहीं कर पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्र अपने जगह बिल्कुल ठीक है, मैं शास्त्र को कभी अवमानना नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शास्त्र की चीजों को अगर बॉर्डर लाइन दे के हम करते जाएंगे तो हमारी कला में जो एक फ्रीनेस है, जो एक सोच है, जो एक कलाकार की सोच है, वो बहुत मुश्किल में पड़ेगा। मुझे ऐसे फील होता है। लेकिन ठीक है, अगर आप शास्त्रीयता को देखते हुए करना चाहते हैं, वो भी एक अलग चीज है, वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन फ्रीनेस मैं आपको बताऊंगा क्योंकि छऊ में किस तरह से फ्रीनेस मिली है, तभी जाके इतना क्रिएटिव वर्क हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहला जो है वो इस तरह से बॉर्डर लाइन में हमारा यहाँ खत्म होता है। बाकी जो जितने टेक्निक है वो सारे टेक्निक में थीम है, क्योंकि करेक्टर है। मेढा तेलिया, अब 2 भेड़ की फाइट है, पहा माठा, वो 2 योद्धाओं का खेल है। ये खेल का बात बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जब हम उफली की ओर जाते हैं या उफली का बात करते हैं तो कहते हैं गुटी कूड़ा, गुटी फिंगा। अरे किस तरह से रोजमर्रा जिंदगी में एक हाउसवाइफ सुबह से लेकर दोपहर तक काम करती है, उसी को इमिटेट कर नेचुरल मूवमेंट तो है ये। इसीलिए कहा जाता है ना कि छऊ में, नॉट ओनली सरायकेला, पूरे छऊ में
लोकधर्मी और नाट्यधर्मी का समावेश है। 50% लोकधर्मी और 50% नाट्यधर्मी का समावेश से छऊ बना है। तो लोकधर्मी चीजों को किस तरह से लाकर उसको नाट्यधर्मी के रूप में परिणत किया गया है, यही छऊ की बहादुरी है। दूसरी चीज है, अब आते हैं सेकंड स्टेज में, नृत्य। अब नृत्य में क्या है कि थीम हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है। ऐसे अगर आप देखेंगे हमारे छऊ की रेपुटूर में, पुराने अखाड़ा सिस्टम में भी देख लीजिए और अखाड़ा के बाद अभी जो 20वीं शताब्दी में 20th सेंचुरी में जो चल रही है, या विजय प्रताप सिंह को ले लीजिए, या नटसर बनबिहारी पटनायक को ले लीजिए, या मेरा खुद पापा को ले लीजिए, या गुरु जी को ले लीजिए, केदारनाथ साहू को लीजिए, या सुधीर नाथ सिंह जी को लीजिए, गुरु जी को मेरा, इन लोगों की जितनी कोरियोग्राफी हुई है 20वीं शताब्दी में, वो नाट्य की ओर ज्यादा दर्शाता है। लेकिन जो बीच वाला है उस पे भी बहुत काम हुए हैं। कैसे? एक सबर, हंटर एक कैरेक्टर है, उसमें थीम नहीं है, लेकिन आप अगर सोचेंगे तो उसमें थीम भी है। कैसे कि वो सुबह से निकलता है, अपना जाता है, शिकार खोजता है, ढूंढता है, मिलता है, मारता है, मारने के बाद खुशी प्राप्त होता है, एक स्टोरी हो गया। ऐसे ही एक फिशरमैन, धीवर, मछुआरा, ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो प्रजापति, बटरफ्लाई, भ्रमर, हंस, मयूर, सागर। लेकिन एक चीज सरायकला में हमेशा हुआ है कि अगर हम रियलिस्टिक चीजों को भी लेते हैं, लेकिन उस रियलिस्टिक चीज की जो थीम है, उस थीम को भी लेके हम उसको जो ट्रीटमेंट देते हैं वो कंटेम्प्रेरी की ओर देते हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से हम उसको पेश करते हैं। अब मुझे बताइए कि एब्स्ट्रैक्ट तरीका का पेश करने के लिए वो शास्त्र में क्या हो सकता है? तो बड़ी, इसीलिए मैं कहता हूं कि फ्री, अगर हम इसकी बॉर्डर लाइन ना रखकर फ्रीली ट्रीटमेंट कर हम डांस को बनाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा अच्छा सराहनीय होगा। लोग उसको ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि लोग देखना चाहते हैं अच्छा चीज। आपने क्या करा क्या नहीं करा वो अलग चीज है, वो तो शास्त्र के हिसाब से हम करेंगे, क्योंकि हम कुछ हमारा क्या बोलते दायरा है, उस दायरे के अंदर में हमको करना ही है। लेकिन उस दायरे में रहकर हम उससे कितना आगे बढ़ सकते हैं, वही हमारी क्रिएटिविटी है। तो सेकेंड फेज में जो नृत्य है, उस नृत्य में कैरेक्टर और दर्शाने का जो तरीका है सरायकला छऊ का बिल्कुल अलग है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर सबर देखेंगे, हंटर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल रियलिस्टिक चीजें हैं, एक रियलिस्टिक कैरेक्टर के ऊपर इस आइटम्स को बनाया गया है। लेकिन अगर पीकॉक देखेंगे, मयूर, तो आपको पता है कि मयूर, हमारा मयूर, भारतवर्ष में जितना मयूर है उससे बिल्कुल अलग है हटके। क्योंकि विजय प्रताप सिंह ने रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कविता पढ़ा था, अब मेरे ख्याल से ऐसे कुछ था कि आज के अमार मन मयूर मोतन नाचे। वो कविता पढ़ने के बाद इतना इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने एक जिंदगी, एक खुशी को, एक इंसान की खुशी को पीकॉक के रूप में दिखाने की कोशिश करी। तो एक बेसिक चीजों की आइडिया लेकर उसको किस ढंग से इन्होंने उसको बनाया और उसकी ट्रीटमेंट कैसा किया। देखिए, अभिनय पहला वाला छोड़कर दोनों में अभिनय रहता है। पहला वाला NRITT में छोड़कर, नृत्य में छोड़कर, नृत्य और नाट्य दोनों में अभिनय होता है, दोनों में मूवमेंट होता है। सबसे बड़ी चीज है कि हमारा एक ही अभिप्राय होता है कि डांस में कि हम जो बोलना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, वो लोगों के आंखों को और कानों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आपका कॉम्पोजिशन सही है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपका कॉम्पोजिशन ठीक नहीं है। चाहे आप कितना जोड़ तोड़ कर साहित्यिक, लिटरेचर, जोड़ घटाव लगा, मेन उद्देश्य होता है हमें अपने दर्शक को
अपने आर्ट फॉर्म को आपके सामने मैं कैसे परोस रहा हूँ। खाना उसी में स्वाद है, आप कितना भी अच्छा बनाइए, अगर आपने ठीक ढंग से नहीं परोसा, एक के बाद एक, तो क्या बोलेंगे लोग? अरे आज उनके घर में खाने के लिए गए थे, कितना सुंदर खाना वही है, लेकिन जो परोसने का तरीका है वही है डांसर का काम। डांस बनी हुई है, डांस गुरुजी लोगों ने अच्छी तरह से बनाया है, आप किस ढंग से उसको परोस रहे हैं, आप किस ढंग से उसको स्टेज पर रख रहे हैं, वो शास्त्र के हिसाब से रख रहे हैं या अपने ढंग से रख रहे हैं। अगर अपने ढंग से रख रहे हैं, वहां कोई बैठ के नहीं देखेगा कि ये इसके अंदर में अभिनय दर्पण में के अंदर में नहीं आया, ये नाट्य शास्त्र के अंदर में नहीं आया। नहीं, मैं इनको मना भी नहीं करता। मेरा बोलना है कि जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो आप अपने मन को पहले पूछिए कि मन अगर सही है और मन अगर आपका सही कहता है कि मैं सही उचित पथ पर जा रहा हूं, तो आप चलिए। एक दो बार गलती होगी। अब जो नृत्य वाला मामला है उस पे हमारा सरायकला छऊ कहाँ खड़ा है? मैंने आपको बताया कि पीकॉक, सागर, अब सागर ही देख लीजिए। सागर की बॉडी की मूवमेंट को, वेव की मूवमेंट को दिखाने के लिए या सागर की कैरेक्टर को दिखाने के लिए उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग को, एक डांसर को चुनकर उसके अंदर में सागर की सारे कंपोनेंट को दिखाया कि कितना भयंकर है, कितना स्मूथ है, कितना सुंदर है, कितना आराम से पानी चलता है, कितनी उद्भट से उसकी लहर चलती है। आप सोचिए, केवल सागर में बोलकर नहीं, आपकी जिंदगी में भी सागर की तरह लहरें उठती है, सागर की तरह ज्वार भाटा होती है, उस फिर समाप्त होता है, फिर आपको सुकून मिलता है। तो पूरी जिंदगी के साथ किस तरह से तुलना की, आप मुझे बताइए। अगर मैं इसी चक्कर में रह जाऊं कि ये दायरा को छूं या वो दायरा को छूं या नहीं छूं या बाहर जाऊं, तो फिर मैं ये जो मेरा पर्पस है, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं इस नृत्य के आगे दिखाना चाहता हूं, वो मैं कैसे दिखाऊंगा? बहुत मुश्किल में पड़ूंगा मैं। इसलिए थोड़ा फ्री, थोड़ा शास्त्र, थोड़ा लोक, इन सब चीजों को लेते हुए अगर कला आगे बढ़ती है तो बहुत बढ़िया होता है। इस ढंग से हमारे यहाँ अनेकों आइटम है जो नृत्य के अंदर में आता है। अब आते हैं नाट्य। 20वीं शताब्दी में जब फर्स्ट टाइम हमारे सरायकला के छऊ विदेश जाने के लिए तैयार हुआ, विदेश जाने की रेडी हो रहे थे, तो उस वक्त लास्ट राजा आदित्य प्रताप सिंह थे। आदित्य प्रताप सिंह के ब्रदर विजय प्रताप सिंह, जिसे हम विजय बाबू के नाम पर जानते थे, उन्होंने अखाड़ा सिस्टम को एबॉलिश कर, क्योंकि उससे पहले तक अखाड़ा सिस्टम चल रहा था, अखाड़ा सिस्टम को एबॉलिश कर उन्होंने विजय लक्ष्मी कला भवन की स्थापना करा, और जहां उन्होंने पूरे अखाड़ा के गुरुओं को और डांसरों को लेकर न्यू आइटम्स की कोरियोग्राफी की शुरुआत करी। मैं तो कहूंगा कि सरायकला छऊ का एक स्वर्णिम युग था जो विजय प्रताप सिंह ने स्टार्ट किया। अखाड़ा सिस्टम सरायकला छऊ का मध्यवर्ती युग था जिसमें बहुत काम हुआ, बहुत समृद्ध सरायकला छऊ बना। और उससे पहले क्या था ये तो बोलना बहुत मुश्किल है। अखाड़ा से पहले क्या था मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं इसका कुछ ट्रेस भी मिलता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ना कुछ होता था, इसका प्रमाण मिलता है। किस ढंग में होता था ये नहीं पता था। हाँ, अखाड़ा सिस्टम जब से आई है तब से इसका पता था। और अखाड़ा सिस्टम शुरुआत हुई है 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी। तो धीरे धीरे कैसे वो आगे बढ़ा और किस तरह से राजाओं ने इंटरेस्ट लेके इस डांस को आगे बढ़ाया। तो विजय प्रताप सिंह ने जब कोरियोग्राफी नया शुरुआत किया तो उन्होंने अनेक तरह की थीम लिए। आपको पता है कि सबसे पहले हमारे डांस फॉर्म, जितने भी डांस फॉर्म थे, सभी माइथोलॉजी के ऊपर निर्भर थे। माइथोलॉजी का करते थे, हिस्टोरिकल करते थे, ये सब डांस होते थे हमारे। रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाएं, ये सब को लेके करते थे। जैसे देखिए आप आज पुरुलिया छऊ में केवल पौराणिक कथाएं, केवल रामायण, महाभारत, ये सब चीजों के ऊपर आधारित है। आप उसी ढंग से चले जाइए मयूरभंज में। मयूरभंज में जितनी फोक चीजें हैं, मैक्सिमम फोक चीजों के ऊपर है। जैसे क्या बोलते हैं उसको, काल चक्र, है ना, फिर आदिवासी,
है ना। तो ये ऐसे ऐसे डांस में बहुत ज्यादा, हाँ उनके 4-5-6 आइटम है जो बिल्कुल 20वीं शताब्दी में बनी। नटराज, दंडी, गीता, महादेव, सवोटोका, ये आइटम्स कुछ आइटम्स हैं जो कैरेक्टर के ऊपर और थीम के ऊपर। अगेन आप देखेंगे तो माइथोलॉजी में है गीता, फिर महाभारत की ओर चला गया। तो ऐसे चलते थे, हमारे में भी थे, सरायकला में भी अभी भी माइथोलॉजिकल आइटम्स हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड माइथोलॉजिकल। 20वीं शताब्दी में विजय प्रताप सिंह के आने के बाद माइथोलॉजी घट गई, रियलिस्टिक और काल्पनिक, कल्पना और इनोवेटिव, ये तीन चीजों का समावेश हुआ। कैसे? उन्होंने जितनी आइटम बनाई उसमें से सबसे पहला आइटम, मैं आपको 2-3 आइटम का बात बताता हूँ कि देखिए किस तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट किया और नाट्य को कैसे स्वरूप दिया, क्योंकि अभिनय को दर्शाना था, इस पे बराबर का सारा चीजों को दर्शाना है। तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जब अखड़ा सिस्टम की डांस को दिखाया था, मेरे फादर भी और मेरे गुरु लोग कहते थे कि उन्होंने सबसे पहले जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कलकत्ता में दिखाया था, क्योंकि कलकत्ता हमारे नजदीक है, तो कलकत्ता हमारे राजा का घर भी था कामा स्ट्रीट में, अभी भी शायद है या नहीं पता नहीं लेकिन थे। तो वहां जाके विजय प्रताप सिंह खुद रहते थे कभी कभी कलकत्ता में, तो उन्होंने वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी को डांस दिखाया। जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी को डांस दिखाया तो उन्होंने 2-3 चीजें बताई कि उन्होंने, अभी भी मुझे याद है, बंगला में उन्होंने कहा था कि बाबा विजय तुम्हारा डांस सबकी छुआ छे किंतु भाव नहीं। अब उनके दिमाग में लग गई कि भाव नहीं है, तो भाव कैसे लाया जाए। अब वहां से आने के बाद जितनी कोरियोग्राफी आया उसमें इतनी भाव प्रवण का डांस आया हुआ कि जवाब नहीं। आप देखिए कि जितना कोरियोग्राफी विजय प्रताप सिंह ने किया वो सारे मैक्सिमम श्रृंगार रस में किया है। उसी के साइमल्टेनियसली आप चले आइए नटशेखर बन बिहारी पटनायक, राजेंद्र पटनायक का बेटा, जो मेरे पिताजी और नटशेखर बन बिहारी पटनायक गवर्नमेंट सेंटर में थे, 1960 में गवर्नमेंट सेंटर पैदा हो गया। उससे पहले नटशेखर बन बिहारी पटनायक ने जितनी भी कोरियोग्राफी करी है, या तो प्योर डांस करा है, शुद्ध नृत्य, या तो कैरेक्टर। आप इसी में डिस्टिंग कर सकते हैं, आपकी जो बॉर्डर लाइन है इस पे डिस्टिंग हो सकती है। कैसे? पहले केवल, क्योंकि नटशेखर बन बिहारी पटनायक का जो शिक्षा पद्धति था वो फरी खंडा नहीं था, वो टुईला पकड़कर पैरों का और बॉडी का काम होता था। ये NRIT नृत्य, और बीच में उनकी कैरेक्टर थी, जैसे सवर लीजिए, धवत धीवर लीजिए, नारद ले लीजिए, ये केवल कैरेक्टर बेस्ड था। बाद में चले आइए थर्ड फेज में हर पार्वती। सर एक बात पूछूं आपको? बोलिए। हाँ सर, आपका तो इस सिरेकिलर स्टाइल में मुखौटा है। हाँ जी। फिर आप इस तो अंदर में ये तो दिखाई नहीं देता है, मुख फेशियल एक्सप्रेशन तो दिखाई नहीं देता है, मुखौटा का जो एक्सप्रेशन। हाँ आप थोड़ा इसमें कुछ बोलिए ना, आप बॉडी लैंग्वेज से। अभी मैं उसी में आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके उसी में आ रहा हूँ। थैंक यू। तो हर पार्वती है, महाभारत से लिया, यहाँ से लिया, उन्होंने इस तरह से करने लगे। तो मेरा बोलने का है कि मैथोलॉजी तो था ही, लेकिन मैथोलॉजी को रखकर विजय प्रताप सिंह ने किस ढंग से अपना जो उनका जो सोच था उस सोच को कैसे दर्शाया। अब सबसे बड़ी बात है कि छाऊ में मुखौटे की प्रयोग होती है। मुखौटा एक स्थायी भाव में प्रदर्शित होता है, एक स्थायी भाव होता है मुखौटे में, यानी कि एक रस का एक स्थायी भाव को हम मुखौटे में दिखाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का कच्छ और देवजानी हमारा एक आइटम है, जिसमें विजय प्रताप सिंह ने पहले शुरुआत में उन्होंने श्रृंगार रस में कच्छ को और देवजानी की पूरी खेल को दिखाया। बाद में जब कच्छ बोलता है कि मैं तो जा रहा हूं, तो देवजानी रोती है। अब उस पे क्या है कि हम कहते हैं
कि जो मुखौटा है, सबसे पहले समझिए कि मुखौटा है क्या। मुखौटा जो है छऊ नृत्य में तीनों स्टाइल में मुखौटे की प्रयोग होती थी। मयूरभंज ने 20वीं शताब्दी में मुखौटे को हटाया है। अभी मैंने एक फिल्म बनाया था, उनके गांव में से एक शिव का मास्क और एक लड़के को मैंने शिव डांस करवाया है, वो जो पहन के करते थे वो मेरे फिल्म में है। तो मुखौटे के प्रयोग से इंसान अपना चरित्र खोकर उस चरित्र में चला जाता है जिस चरित्र को वो ऑन स्टेज रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको मुखौटे किस तरह से एक्सप्रेस करती है वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। मुखौटा एक स्थायी भाव है। अभी अगर आप मेरे चेहरे को देखेंगे, मैं एक स्थायी भाव में हूं। मेरे को गुस्सा आया, मैंने गुस्सा किया, नेक थ्रू नेक मूवमेंट। मेरे को रोने का था, मेरे को हंसना है। तो जिस तरह से आप अपने मुखाभिनय से आप करते हैं, ठीक उसी तरह से मुखौटे पहनने के बाद, चूंकि मुखौटा एक स्थायी भाव रहता है, थ्रू ग्रीवा भेद, नेक मूवमेंट और बॉडी की मूवमेंट से आपको पता है कि छऊ बेस्ड ऑन आंगिका अभिनय। शरीर से सारा कुछ हम बोलते हैं, कोशिश करते हैं, अगर शरीर से नहीं निकलती है या कभी कमजोर पड़ता है तभी हम मुद्रा यूटिलाइज करते हैं। ये नाट्य धर्मी है। मैंने अगेन आपको कहा कि लोक धर्मी और नाट्य धर्मी का समावेश से छऊ बना है। तो मुखौटे का जो भाव है, आप देखिए जैसे मुखौटा है, अब ये देवजानी का मुखौटा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये देवजानी मना कर रही है, बाद में देवजानी रोती है। एक मूवमेंट बॉडी मूवमेंट मुखौटे का एक्सप्रेशन को चेंज करता है। जैसे मैं रात्रि की बात करता हूँ, जब मैं रात्रि करता हूं तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि बिना अंदर में, जो मैं अभी आपको करके चेहरे से दिखा रहा हूँ, सेम एक्सप्रेशन जब मैं नाचता हूँ या जो भी नाचता है उसके अंदर में चलता है। कोई हंसते हंसते गुस्सा नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। मैं अंदर हंस रहा हूँगा और मेरा मुखौटा गुस्से का बताएगा, नहीं हो सकता है। जो एक्सप्रेशन हमारे चेहरे से निकल रहा है उसी का रिफ्लेक्शन हमारे मास्क में पड़ेंगे। क्यों? कि उसके हिसाब से हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है, उसके हिसाब से हमारा नेक होता है। दूसरा चीज बताऊं, अभी हम बात करते हैं जैसे सेंटिमेंट्स की, ठीक है ना, नौरस है। देखिए अभी हम ये सब बात करते हैं, पहले ये सब नहीं था। पहले तो बताते थे गर्दन उठा, गर्दन नीचे कर, गर्दन साइड कर, गर्दन इस साइड कर, ये बोलते थे। ग्रीवा भेद भी नहीं बोलते थे। आज हम जानते हैं क्योंकि शास्त्र हमने पढ़ा कि ग्रीवावाद इतने तरह का है, ऐसे ऐसे ग्रीवा होता है तो उसको ये ग्रीवा बोलते हैं, है ना। लेकिन पहले क्या बोलते थे, सर नीचे कर, मुखौटा पहन लिया। जब तुम एंट्री करोगे रात्रि में, मुझे बताया गया था, जब तुम रात्रि में एंट्री करोगे तो तुम्हारा नेक जो है वो नीचे रहेगा। मैं मास्क, ऐसे मेरा मास्क है, ऐसे मैं चलता हूँ नीचे। और फिर जब मुझे रात्रि की उग्र रूप दिखानी होती है तो मैं क्या करता हूँ, ये नेक को ऐसे उठाता हूँ, ऊपर नेक को उठाता हूँ, तो ये आंखें जो झुकी हुई नेक है वो ऐसा लगता है जैसे आंखें खुल गई, आंखें ऊपर हो गई। तो दुख, कष्ट सब, आप बाण विद्या अगर आप देखे होंगे, अगर बाण विद्या ने, तो वो अपने अंदर का कष्ट को दिखा रहा है। उसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि उसका जो बॉडी मूवमेंट है, उसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट अपने आप में कष्टदायक है। नेचुरली वो मांस या वो गर्दन भी कष्टदायक है। क्योंकि देखिए जैसे हम चलते ना, ता की ना की ना की झा की ना की ना की झा, तो एक
जो कष्ट है, एक जो पेन है शरीर का, वो पूरे पलटा के उसको किस तरह से, और जब हम करते हैं डांस को तब हमको वो कष्ट अनुभव होता है। अनुभव नहीं करना, देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ, कोई भी डांसर, खास करके मैं अपना चीज बताता हूँ, मैं अभी एक अलग हूँ, लेकिन जब कॉस्ट्यूम पहन लेता हूँ, घुंघरू पहन लेता हूँ और उसके बाद मास्क पहन लेता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं हूँ, मैं वही नाम से नामित होता हूँ जो कैरेक्टर ऑन स्टेज रिप्रेजेंट करता हूँ। आप खुले चेहरे में आप बोल सकते हो कि ये राधा अगर कर रही है शैली पाल जी, तो कहे कि ये शैली कर रही है। कृष्ण अगर ससधर जी कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ससधर जी कृष्ण कर रहे हैं। लेकिन अगर मुखौटा में पहना जाए तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है, आप कहेंगे ये राधा है, ये कृष्ण है। इससे बड़ा अभिनय में परिवर्तन और क्या हो सकता है। कैरेक्टर चेंज हो जाती है, चरित्र परिवर्तन कर लेते हैं हम अपने आप को, और जब चरित्र परिवर्तन हम कर लेते हैं तो उस चरित्र में जो कुछ भी होता है, जो कुछ हम दिखाते हैं, वो चरित्र के हिसाब से दिखाते हैं। ये अनुभव होना चाहिए। और मुझे एक चीज लगता है कि मुखौटा के प्रयोग से हमारा नृत्य बाकी नृत्यों से इसीलिए अलग है क्योंकि इसका टेक्निक अलग है, इसका चलन अलग है, और सबसे बड़ी चीज है इसका कैरेक्टर। इसका कैरेक्टर इसलिए अलग है कि देखिए महाभारत में कृष्ण बात करते हैं तो कौन सा कृष्ण है, ये क्या कृष्ण है, क्या कृष्ण है, महाभारत का कृष्ण है, कौन सा कृष्ण है। तो आपको ये मुखौटे से पता चल जाएगा कि ये बच्चा कृष्ण है, ये बीच वाला कृष्ण है, ये महाभारत का कृष्ण है। तो अभिनय को दर्शाने का तरीका देखिए, अगेन मैं आपको कहता हूं कि सरायकला छऊ बेस्ड ऑन आंगिका अभिनय, नॉट ओनली सरायकला छऊ बेस्ड ऑन आंगिका अभिनय। आंगिक अभिनय इसमें ज्यादा है, उस आंगिक अभिनय से, उस नेक मूवमेंट से पूरे शरीर की मूवमेंट होती है, उससे मुखौटा आपको संचारी भाव में ले जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक हमारा नाविक आइटम है जिसपे एक बोटमैन और एक उसकी वाइफ, ये दो लोगों का डांस है। विजय प्रताप सिंह की कोरियोग्राफी की एक सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि विजय प्रताप सिंह की जितनी डांस की कोरियोग्राफी हुई है उसमें सब एक इंसान की जिंदगी के साथ तुलनात्मक अध्ययन होकर हुआ है। कैसे? नाविक में कहते हैं कि इस भव रूपी सागर में जीवन रूपी नौका को पार कराने के लिए, इस भव रूपी सागर में जीवन रूपी नौका को पार कराने के लिए एक अच्छी सहधर्मिणी की आवश्यकता होती है, एक अच्छी बीवी की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्यों कि जिंदगी में जितनी तरह की झड़झंझा आएगी उसकी आगाज वो स्त्री करती है कि तुम्हारी जिंदगी में यह होने वाला, यह आ रहा है, इसको हम दोनों मिलकर करेंगे। अब देखिए उस नाविक को कि एक तो उन्होंने दिखाया है कि जैसे शुरुआत होता है वो आकाश को देखते हुए आ रहे, स्लोली धीरे धीरे सोचते हुए। नाविक अगर मैं कर रहा हूं तो मैं हंसते हुए नहीं आ सकता हूं अंदर, ऑटोमेटिकली मेरा भाव जो है नाव के साथ, मतलब पतवार के साथ सोचते हुए आ रहा हूं कि अरे इतना बड़ा घना बादल, इतनी हवा आएगी, और वाइफ उसको बाएं हाथ से इंगित करके दिखाती है कि देखो वो आ रहा है, वो आ रहा है, तुम चिंता मत करो। इस जीवन में जितने तरह की झंझा आएंगी उस झंझा को हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, और मिलकर सॉल्व करते हैं, पार हो जाते हैं, वो नौका उस समुद्र में पार हो जाती है, तो खुशी से दोनों नाच उठते हैं। ये बोटमैन की है। इसलिए कहते हैं कि भव रूपी सागर में जीवन रूपी नौका को किस तरह से पार की जाती है, वो रिलेशन एक स्वामी और स्त्री को के बहाने में इस नाविक के माध्यम से विजय प्रताप सिंह ने दर्शाया है। कितना सुंदर चीज है।
आइए मैं रात्रि के बारे में एक माइथोलॉजी से कैसे स्टोरी लेकर आज की जिंदगी में जोड़ देते हैं, बताइए। ये कितनी अच्छी चीज है। इसकी कोरियोग्राफी में क्या, इस नाट्य में क्या नहीं है, बताइए। मैं तो कहता हूँ कि सरायकला चौकी अगर नाट्य के भाग को आप देखेंगे संपूर्ण दिखेगा आपको। जैसे रात्रि, अब ऋग्वेद से रात्रि सूक्त से रात्रि के बारे में लिया गया। क्या लिया कि रात्रि कितना भयंकर है, रात्रि कितना सुखद है। ये दोनों चीज के ऊपर बात करते करते उनको लगा कि यार ये रात्रि इतनी भयंकर, कितने देर तक ये अंधेरा को मैं दिखाऊंगा डांस में। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, किस तरह से एक आम आदमी कैसे समझेगा इस चीज को। उन्होंने समझाने की कोशिश करा। उन्होंने कहा कि नहीं, एक हिंदू नारी डेली शाम को शंख बजाकर दिया जलाकर काल रूपी रात्रि की आह्वान करती है कि हमारी जिंदगी सुखद हो। तो उन्होंने कहा कि संध्या होता है, संध्या होने के बाद रात्रि आती है, रात होने के बाद चंद्रमा निकलता है, तभी जाके अच्छा लगता है। आपको अमावस्या की रात को कभी अच्छा नहीं लगेगा। जिस दिन चांद निकला होगा आप बोलेंगे हाँ हाँ कितना सुंदर लग रहा रात आज तक। तो ये जो सुखद है, तो उन्होंने क्या बोला कि एक आम जिंदगी के साथ तुलना करते हुए कि एक स्त्री शंख बजाकर दिया जलाकर काल रूपी रात्रि की आह्वान करती है और उसके बाद रात्रि की प्रवेश होता है। उसमें भी देखिए, जब रात्रि में संध्या में कितना गंभीर अंदर तक जाना पड़ता है तभी जाके डांस होता है। केवल डांस को करने से नहीं होता, गुरुजी लोग सिखा दिए, उसके बाद आपको उसके अंदर में जाना पड़ेगा तभी जाके काम होता है। कैसे? संध्या में वो दिया जला के निकलती है, नमस्कार करती है, उसके बाद स्पीड बढ़ता है रिदम का। डे दा डे ने ता के डे ने ता के डे ने ता आ डे दा डे ने ता के डे दा गे ने ता। ये जो स्पीड है ये हड़बड़ी है। क्या आपको पता है कि पूरे दिनों भर काम करने के बाद चाहे पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, वो सब अपने अपने हड़बड़ी से घर को लौटते हैं। तो ये हड़बड़ी दिखाया उन्होंने कि किस तरह से रात काल रूपी रात्रि की आह्वान से लोग भयभीत होकर अपने अपने घर में सब घुसना चाहते हैं। तो कितनी सुंदर चीजें हैं कि अपने अपने किस ढंग से वो वहां चले गए। उसका रात्रि आती है, रात्रि अपनी चीजों को दिखाती है, फिर उनको अच्छा नहीं लगता है, फिर उन्होंने चंद्रमा को और उन्होंने कहा कि ये चंद्रमा जो है इस चराचर जगत का प्रतीक है, ह्यूमन बीइंग का। ये वो चंद्रमा नहीं है जो आप आकाश में देख रहे हैं। तो एक माइथोलॉजी से, एक वेद से चीजों को निकाल कर कितनी इनोवेटिव, कितने क्रिएटिव दिमाग उन्होंने सोचकर इस आइटम्स को बनाया। एक आम आदमी के लिए बनाया और जो शास्त्र जानते हैं उनके लिए भी बनाया। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि शास्त्र को रखते हुए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शास्त्र को अपने जगह रखते हुए, उसकी मान्यता को रखते हुए, मान्यता को देते हुए हम अपने क्रिएटिविटी को ना मारें, हम अपनी क्रिएटिविटी पर चलें। मेरा यही हमेशा रहा है। मैं हमेशा यही काम करता हूं कि वो कहते हैं ना कि थिएटर में कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि यार विदाउट इम्प्रोवाइजेशन, बिना इम्प्रोवाइजेशन कोई चीज नहीं होता है। हम तो सीन भी बनाते हैं इम्प्रोवाइज कर कर, हम तो कैरेक्टर भी बनाते हैं इम्प्रोवाइज कर कर, लिखते भी इम्प्रोवाइज कर कर। तो इम्प्रोवाइजेशन का शब्द जो है ना, जो उपज है, टू क्रिएट समथिंग न्यू, उपज। हमारे डांस में क्या शब्द है इम्प्रोवाइजेशन का? उपज। मैं जब आज से 15-16 साल पहले एक बार सिंगापुर गया, एक थिएटर बॉक्स, सिंगापुर थिएटर बॉक्स में, वहां एक वर्कशॉप के लिए मैं, होसन तुम्बा, 2 लोग थे, माया राव 3, और कुडियाट्टम का मधुमार्गी और रुस्तम बरूचा सर, हम 5 लोग गए। वहां जाने के बाद जो मुझे क्रिएटिव चीजें को नॉलेज में आया और देखा मैंने, और उन्होंने जब हमसे काम कराना चाहा तो हमको बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि हमने उस प्रोसेस में कभी गए नहीं थे। फिर बाद में जब हम उस प्रोसेस को समझने की कोशिश किए कि हमारे गुरुओं ने टेक्निक से निकालकर किस तरह से डांस मूवमेंट में परिणत किया, वही तो इम्प्रोवाइजेशन है, वही तो खेल है सारा चीज। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे पिताजी या उनके पिताजी या मेरे दादाजी या मेरे पिताजी के चाचा जी ने नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण नहीं पढ़े होंगे। ये मेरा वादा है, ये पक्की बात कह रहा हूं। और मैंने भी नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ा था। मैं भी जब केडी त्रिपाठी को मिला तब जाके पढ़ा। जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे यार नाट्य शास्त्र क्यों पढ़ूं, ये तो सारी चीज हमारे घर में है, हमारे छाऊ में है, मैं क्यों पढ़ने जाऊं, मैं क्यों तुलनात्मक, क्यों मैं संस्कृत में लिखने जाऊं, मैं क्यों नहीं लोकल लैंग्वेज में लिखूं। आगे अगर मैं घूरा बोलता हूं, तुम भ्रमरी बोलते हो, क्या अंतर है यार? घूमने को तो भ्रमरी बोलते हैं, है ना। तो जंप करना, सुनो, संस्कृत शब्द उत्प्लावना है, हम बोलते हैं अरे जंप करो या चलो डियो, है ना। ओडिया शब्द जो है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इसलिए लगता है कि बॉर्डर लाइन नहीं करना चाहिए। जिस बात पर हम बात कर रहे हैं, बॉर्डर रखना चाहिए, ठीक है, शास्त्र के लिए बॉर्डर होना चाहिए, लेकिन जब हम काम करते हैं
तो अगर उस बॉर्डर के लाइन के चक्कर में रह जाएगा ना, तो हमारी काम अधूरा रह जाएगी कभी ना कभी। मुझे ऐसे फील होता है। और कुछ बोलिए। हाँ सुमन, हेलो। हाँ, हाँ शशिधर जी, हाँ बोलिए। गुरुजी सुनाई दे सुमन, रहे? हाँ हाँ सुमन बोलो। प्रश्न আছে? हाँ सुनाई गुरुजी दे मैं रहे हैं। एक चीज तो ये आपने जो बताया आज, ये हम भी मतलब पिछले कई साल से यही सोच रहे, जब से मतलब अपने नाटक की पढ़ाई शुरू हुआ। ये खास करके आपने आज जो बोला है कि ये आपने आज जो बोला है कि जब हम मुखौटा पहन लेते हैं तो हम उस कैरेक्टर में चले जाते हैं, हम अपने चरित्र, अपने ये सब छोड़ देते हैं। तो ये सेम चीज कुडियाट्टम में भी है। वो लोग भी जब अपने पूरा वो रेशम पूरा हर ये अभिनय लेकर मंच पर जाते हैं, तो वो भी वही कह के जाते हैं कि मैं वो बन गया। कथकली, कुडियाट्टम, यक्षगान, तेरेकुतु, है ना, ये सारे बिना मुखौटे लगाए हुए भी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये बस मेरा एक छोटा सा क्लैरिफाई करने के लिए, हम हमारे जनरेशन के लिए और हम जितने सारे यंग प्रैक्टिशनर्स हैं, मुझे ये जानना था कि जैसे छाव एक ऐसा कंप्लीट आर्ट फॉर्म है, एक कंप्लीट परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म है, जिसको हम तो कभी डांस कहते ही नहीं छाव को, क्योंकि ये कंप्लीट एक आर्ट फॉर्म है। उसको डांस कहेंगे तो वो छोटा हो जाता है मेरे हिसाब से, मैं जब इसको बात करता हूँ। राइट, एग्जैक्टली। तो इसमें एक ही साथ, हाँ इसमें एक ही साथ जो नृत्य, अभिनय, नाट्य का उपादान, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो एक साथ है, तो ये सारे का असल मतलब ये कहीं पे जाके एक आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। जब प्रेजेंटेशन आप लोग करते हैं, जब आप लोग परफॉर्म करते हैं या जूनियर्स जब परफॉर्म करते हैं, तो उसका उद्देश्य कि आप फाइनली अभिनय पे पहुंचना होता है। देखो बेटा, ये डिपेंड करता है कि कलाकार के ऊपर है कि कलाकार किस। देखो एक थीम 5 लोगों को दे दो और उस थीम में बोलो 5 डायरेक्टर को काम करने के लिए, ठीक है। सभी डायरेक्टर अपने अपने ढंग से ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग नाटक में करते हैं ना। ठीक उसी तरह से एक कैरेक्टर को गुरु सिखाता है 5 लोगों को और समझाता है एक ही चीज कि बेटा ये कैरेक्टर ऐसा है, इसको ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है वो कलाकार के ऊपर कि वो कलाकार उस कैरेक्टर को कितना समझ पा रहा है और कितना उस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई कर पा रहा है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जब तुम बोल रहे थे तो मेरे को याद पड़ा। एक कैरेक्टर है हमारे यहाँ, मरुमाया एक डांस है, बहुत कम लोग जानते हैं, उसको देखे भी नहीं है, 5-6 लोग हम लोग किए थे। मरुमाया में ये दिखा कि मरुचिका होता है ना, पानी के बगैर में मर जाता है वो हिरन, याद है रात को, है ना, वो मरुमाया है। तो उसको एक ह्यूमन बीइंग के मतलब प्यासा आदमी से तुलना किया गया है, ठीक है। विजय प्रताप सिंधु की कोरियोग्राफी में यही एक बहादुरी था बेटा कि उन्होंने कहाँ ले जाता। जैसे भास की नाटक में बहुत कुछ गुंजाइश होता है ना, भास के नाटक में, ठीक उसी तरह से विजय प्रताप सिंधु की डांस कोरियोग्राफी में बहुत गुंजाइश है आर्टिस्टों को खेलने का, बहुत गुंजाइश है। बस बशर्ते कि आप उसको अच्छी तरह से समझें, आप उस कैरेक्टर को समझें, उस स्टोरी लाइन को समझें, उनके उद्देश्य को समझें, है ना, तब जाके होता है। दूसरा चीज क्या है बेटा कि मुझे ऐसा फील होता है इतने दिन करने के बाद और इनके नीचे, सबसे पहला चीज होता है कि जब तक उस कैरेक्टर को करते हुए आपको खुद को शांति नहीं मिलता है, तब तक आप अधूरा है। अब जाके इतने वर्ष नाचने के बाद कम से कम 500 बार मैंने रात्रि नाचा होगा, अब मुझे पता चला है कि रात्रि सूत्र में रात्रि है क्या चीज। सही मैं बता रहा हूं, लोग ये जो 2 डांस सीखने के बाद अपने आप को मास्टर सोच रहे हैं ना, मुझे लगता है कि क्या बोलूं मैं, अब बोलने की मुझे खुद को खराब लगता है। मैं गुरु नहीं लिखाना चाहता हूं बेटा खुद को, क्योंकि मैं अभी
जब बच्चों को सिखाता हूं ना, उनके शरीर से ऐसा ऐसा चीज निकलता है बेटा, मैं क्या बताऊं। मतलब उनको एहसास करवाना पड़ेगा ना कि बेटा तेरे शरीर में ये चीज है, तू इसे कर सकता है। ये गुरु का काम है, आइडेंटिफाई कर बच्चों को देना। आज क्या है, बच्चे 4 दिन आएगा, 5वें दिन बोलेगा गुरुजी मुझे डांस सिखा दो, और डांस सिखा दोगे तो वो डांस को क्या जस्टिफाई करेगा बेटा, है ना सुमन? जी गुरुजी, एकदम ये ट्रेनिंग का जो मामला है। अच्छा, और एक चीज है कि जैसे अब हम सरायकेला छऊ में खास करके देखते हैं, या पुरुलिया छऊ में भी हम जब रात पुरुलिया छऊ होता है उसमें भी हम देखते हैं कि एक स्टोरी टेलिंग फाइनली इम्पोर्टेंट है। कथा वाचन, कथा को आगे ले जाना वही फाइनल उद्देश्य है। मतलब उसी के लिए नृत्य भी करते हैं, उसी के लिए नृत्य भी करते हैं। सारे टोटल ट्रेनिंग रेपर्टोयर जितना लंबा, जो ट्रेनिंग के ये लंबा जो उनका प्रोसेस है, ये सब फाइनली एक कथा वाचन के लिए, स्टोरी टेलिंग। तो हाँ, सुनो, जब भाषा सबको समझ में नहीं आया था, तो धीरे धीरे लोकल लैंग्वेज में अपना ये शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो उन्होंने क्या किया कि कोई संगीत के ऊपर चला गया, कोई नृत्य के ऊपर चला गया, कोई संगीत नृत्य को बना के चला गया, मिला के चला गया, कोई बिना संगीत का केवल इंस्ट्रूमेंटल चला गया। छऊ तो इंस्ट्रूमेंटल है ना, गाना तो नहीं है छऊ में। पुरुलिया छऊ और मयूरभंज छऊ में गाना गाते जरूर है, लेकिन गाना छऊ में नहीं था बेटा पहले। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि छऊ में गाना नहीं होता है। हाँ, छऊ में स्वर जरूर होता है, और वो स्वर उस कैरेक्टर के साथ लिंक होता है, ये बात मैं भी जानता हूँ। ठीक है, जैसे मैं तुमको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। राधा कृष्ण बोल के हमारा एक डांस है शैली जी, उस डांस में आपने देखा होगा कि कृष्ण पहले निकलता है, तो राधा भी तो पहले निकल सकती थी ना। तिरी खिटी ताग तिरी खिटी ताग तिरी खिटी पर कृष्ण आके मिल लेता, नहीं होता? क्यों नहीं हुआ? ये मेरा प्रश्न है कि क्यों नहीं हुआ। मुझे इतने दिन राधा कृष्ण करने के बाद मुझे पता चला, अरे ये राधा कृष्ण केवल एक लाइन का डांस नहीं है कि लव बिटवीन इटर्नल मैन एंड वुमेन। ये तो इतनी बड़ी कहानी है इसके पीछे कि राधा को बांसुरी से जेलसी होता है। वो कहती है राधा कि अरे बांसुरी तू हमेशा कृष्ण के पॉकेट में मैंने यहाँ रहता है और ओठ में बच जाता है, मैं तो इतने पास होके भी इतने पास नहीं पहुंच पाता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं, मतलब कृष्ण हंस पड़ते हैं और बांसुरी और उनकी बातों को सुन रहे हैं कृष्ण, है ना, छुप कर। तो राधा बोलती है, बांसुरी बोलता है, अरे तुमको पता नहीं है, मेरे को बांस के झाड़ से करत से काटा गया, लोहे से काटा गया, फिर गरम लोहे से मुझे फूड किया गया, तेरे कुछ हुआ है? नहीं किया है। तो फिर जब कृष्ण की ओठ पर मैं जाता हूं, वो जो प्राण मेरे अंदर में फूंकते हैं वही तो मेरा प्राण है। तो वो राधा ने सोचा कि अगर मैं बांसुरी सीख जाऊं तो कृष्ण के जल्दी पास पहुंचूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि कृष्ण को बोला कि मुझे बांसुरी सिखा दो। कृष्ण हंस पड़े। कृष्ण समझ गए कि भाई राधा का इच्छा है कि बांसुरी सीख के और मेरे पास आना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सिखाता हूं। तो उन्होंने बांसुरी दिया राधा को, राधा बेसुरा फूंकने लगी। ठीक है, तो उससे छीन के कृष्ण बाहर निकले हैं स्टेज में, तेरी खिटी तागी तेरी खिटी तागी तेरी खिटी। राधा कैसे निकलेगी? राधा से कृष्ण बांसुरी छीन के निकले हैं। तुम देखो हमारे एंट्री को, तो ये सब पढ़ना चाहिए ना। जब तक आप डांस के अंदर नहीं जाओगे कैसे निकलेगा बेटा ये सब चीजें। फिर राधा आके ज्वाइन करती है, फिर राधा कृष्ण की प्रेम लीला और बांसुरी के थ्रू से दिखाया जाता है। दैट्स ऑल। ये राधा कृष्ण है, लेकिन समझिएगा कौन, है ना? बोलो गुरुजी। गुरुजी और कुछ बताइए। और एक बात, और एक क्वेश्चन करूं? हाँ, अभी हाँ, आप तो डांस में बहुत काम किया, हम तो देखते हैं, लेकिन अभी बहुत दिन से देख रहे हैं आप थिएटर में बहुत काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये थिएटर में आप बहुत काम कर रहे हैं। थिएटर में काम करने के लिए आपको ये डांस थिएटर अलग से कैसे दोनों को जोड़ देते हैं आप? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं, जितने सरायकेला छऊ के डांसर हैं सभी लोग नाटक कर सकते हैं। सब लोग, हम भी नाटक कर रहे हैं बचपन में,
और सबसे बड़ी चीज है कि नाटक के बिना अभिनय बहुत मुश्किल है। नाटक से जितनी चीजों को इजीएस्ट वे में हम निकालते हैं वो तुम्हें पता है, जानता है, इतना इजीएस्ट वे में हम और निकालते हैं, तो उससे मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बचपन से नाटक करता था और छाऊ में मुझे नाटक से कोई कम नहीं लगा कि छाऊ एक नाटक ही पूरी है ना। तो क्योंकि मैं देखता था ना, मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे एक चीज लगता था कि अभिनय, मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि अभिनय किसी को सिखाना बहुत मुश्किल है। अभिनय को सीखना पड़ता है खुद को। खुद जब तक आप महसूस नहीं करेंगे अपने आप में, खुद जब तक आप उसको हृदयंगम नहीं करेंगे, तो अभिनय को निकालना बहुत मुश्किल है। अब किसी को हंसना, रोना, चिल्लाना, गुस्सा करना, डरना, ये सब सिखाना बहुत मुश्किल है। ये अंदर की मामला है और आपको अंदर लेना पड़ेगा। आप अगर जितना अंदर लेंगे चीजों को, जितना समझने की कोशिश करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना अपनी कैरेक्टर की एनालिसिस करेंगे, अलग अलग सोचेंगे, उसको वो करना पड़ेगा। आपको उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपका कैरेक्टर को पूरा ऑपरेशन करके एक थिएटर में अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग रखना पड़ेगा और फिर समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर है क्या, तभी जाके आपकी अपनी एक्सप्रेशन निकलेगी। इसलिए अभिनय सिखाई नहीं जाती है, सीखी जाती है। आगे बताइए और कुछ। हाँ शशिधर जी, टेक्निकली शशिधर जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, सुनिए। ये मॉडर्न थिएटर में, थिएटर के साथ ये छऊ का मतलब ये आपका ये डांस का टेक्निकली कितना संयोग रहता है? आप तो डांसर है, आपका टेक्निक, डांस का टेक्निक आपको बहुत साउंड है, लेकिन जब आप मॉडर्न थिएटर में काम करते हैं तो तब इसको कैसे जोड़ते हैं? मतलब ये आंगिक अभिनय दोनों का अलग अलग होता है, इसको कैसे जोड़ते हैं? नहीं सुनिए, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने संस्कृत थिएटर के लिए भी काम किया है, क्लासिकल थिएटर के लिए काम किया है, रियलिस्टिक थिएटर में भी काम किया है, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी थिएटर में भी काम किया है। मैंने देखा है, आपको पता नहीं है, एक रिचर्ड सेचनर बोलकर एक स्कॉलर अमेरिका से आए थे। हम लोग तब गुरुजी के पास सीख रहे थे और अभी मैं उसके एक बुक मेरे को हाल ही में 3-4 साल 5 साल पहले मिला। उन्होंने लिखा था, और एक एंड्रू टी सुवाकी बोल के आए थे, उन्होंने लिखा था कि सरायकला छाऊ जितना ट्रेडिशनल है उतना कंटेम्प्रेरी है, और मूवमेंट, हमारा जितनी मूवमेंट है वो कंटेम्प्रेरी थिएटर में भी खप जाता है, इंडियन क्लासिकल थिएटर में भी खप जाता है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि रियलिस्टिक काम करते करते भी हमारे बच्चे हमारे मूवमेंट को डाल देते हैं, पता नहीं चलता कि ये क्या, क्यों कि रियलिस्टिक चीजों से आया ना, नेचुरल से, नेचर से लाया हुआ है मूवमेंट। यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। और मैंने अपने आप का कोरियोग्राफी को देखा है, देखने की, समझने की कोशिश करी है कि मैंने तो बना दिया, लेकिन वो दिखता कैसा है, वो अनुभव कैसे हो रहा है ऑडियंस को। तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में छाऊ का जो मूवमेंट है वो ट्रेडिशनल, क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी थिएटर, इवन में वेस्टर्न में जाके भी, यूरोप में जाके मैंने अभी द बर्ड किया था। अब बताइए मुझे, पक्षियों का ऊपर वो नाटक था। हमारे यहाँ कम पक्षी हैं और हमारे पास कम पक्षियों का मूवमेंट है क्या? वो मूवमेंट मैंने वहां डाला, एज इट इज डाला टेक्निकली, वो इतना बढ़िया लगा उनको, क्योंकि वो ग्रुप में काम हुआ था। यहाँ हम एक आदमी करते हैं, वहां 10 लोग कराते हैं, 20 लोग कराते हैं, 25 लोग कराते हैं। तो वो मूवमेंट जो है आपको उस ढंग से रचना करनी पड़ती है। उस नाटक के लिए हम मूवमेंट को बनाते हैं उस ढंग से, हम ट्रेडिशनल मूवमेंट को करते हुए भी उसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो उस नाटक के योग्य हो, उस नाटक के योग्य हो। मैंने किया था, बांग्लादेश कैरेक्टर एनएसडी में थे, एनएसडी में आए थे, वो हमारे यहाँ के पढ़े लिखे हैं, जमील अहमद। उन्होंने किया था चाका द व्हील। उन्होंने एक नाटक किया था, बंगला में था शायद, उसको फिर हिंदी में लिखा गया था, उसको ट्रांसलेशन एनएसडी में किया हुआ था, किसी ने किया था।
उस पे एक शमशान घाट दिखाते हुए और उस शुरुआत करते हैं। उसकी पूरी नाटक मैंने कोरियोग्राफी किया था जमील अहमद की, और वो जमील अहमद मुझे खुद जब नाटक खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा सर, उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि ये ट्रेडिशनल स्टाइल है, आपने कैसे इस नाटक में इसको डाला? मैंने कहा सर, मूवमेंट की जो मूवमेंट ट्रेडिशन में जो हम डांस में करते हैं, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, उसकी जो घनता है, उसको हल्का, जैसे आप एक बात बताइए, ढोल बाहर में बजाने का चीज है, जब हम इंडोर स्टूडियो में आते हैं, आपका स्टूडियो में, तो हमको धीरे बजाना पड़ता ना, ताल तो वही रहता ना, ता तो वही रहता ना, ता ता, ओपन में ता जोर से मारना पड़ता है, और अंदर आते हैं तो बोलते हैं ता, इंटेंसिटी घटाते हैं। मूवमेंट के बारे में हम यही सोचते हैं कि इस कैरेक्टर को कौन सा मूवमेंट डालें कि ये इसके योग्य होगा। देखिए, एक ही मूवमेंट में 3 कैरेक्टर में डाल सकता हूं, एक मूवमेंट 3 कैरेक्टर में 3 तरह की इंटेंसिटी डालकर। तो ये होती है कोरियोग्राफी करने का तरीका। बहुत लोग सोचते नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टर ने बुलाया मुझे कोरियोग्राफी करना, मैं तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, एक एक कैरेक्टर को पढ़ता हूँ, एंट्री, एग्जिट, म्यूजिक तक मैं एक एक चीज को स्टडी करता हूँ, फिर जाके मैं कोरियोग्राफी करता हूँ। पहले मैं बच्चों को मूवमेंट सिखाता हूँ, बाद में कोरियोग्राफी करता हूँ। पहले मैं कोरियोग्राफी नहीं करता हूँ, पहले मैं मूवमेंट का क्लास लेता हूँ 15 दिन, उसके बाद फिर मैं कोरियोग्राफी स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा काम होता है एनएसडी में। और कुछ बताइए। হ্যাঁ, সুমন কিছু বলার আছে? हाँ गुरुजी, एकदम सही, सुमन? बहुत मतलब हम जब भी आपको सुनते हैं और आपके साथ मुलाकात भी जब होते हैं तो मतलब अपना प्रोसेस को हर बार आप जांच कर पाते हैं हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। आप जैसे पारंपरिक कला के एक गुरु, इतने सीनियर गुरु और इतने एक्टिव गुरु जो हमसे भी हर वक्त जवान रहते हैं, हम सारे बच्चों से आपसे हर बार ये प्रोसेस का हम जांच कर लेते हैं कि हमारा प्रोसेस भी ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो खुशी होती है ये। मैं एक चीज, जैसे आपने बताया कि अभिनय तो सिखाया नहीं जाता है, बस हम टेक्निक पार्ट सिखा देते हैं, है ना। जैसे नृत्य पक्ष हम सिखा दिए, नृत्य का थोड़ा पकड़ा दिए लोगों को। एक चीज बताइए गुरुजी, उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि हमारे देश में अभिनय इज नॉट ओनली एक्सप्रेशन, जैसे मॉडर्न एक्टिंग इज नॉट इक्वल्स टू आवर अभिनय। बिल्कुल, हमारे एक्टिंग इज नॉट इक्वल्स टू अभिनय, जैसे हमारे नाट्य इज नॉट इक्वल्स टू थिएटर। हाँ, तो हमारे अभिनय में इसलिए आहार्य भी अभिनय है ना। बिल्कुल है। हाँ, तो इस आहार्य के ऊपर आप अपने कला से लेकर के आहार्य अभिनय है, ये हम जैसे वो लोग सेट प्रॉप्स कॉस्ट्यूम इसको एक अलग चीज कर दे, अलग डिपार्टमेंट कर देते हैं, लेकिन हम उसको अभिनय कर लेते हैं। और जैसे हम छऊ में भी, अपने सरायकेला छऊ में भी बहुत सारे मैंने देखा है, छोटा छोटा प्रॉप्स भी यूज होता है, मतलब वेशम छोड़ के, है ना। जैसे रात्रि चंद्रमा में वो चंद्रमा का यूज करते हैं, उसको ऑलमोस्ट कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स के बीच में लाते हैं ना, तो वो मतलब पूरा कॉस्ट्यूम है ना पूरा प्रॉप्स है। बिल्कुल सही बात, सिंबॉलिकल है एक्चुअली। विजय प्रताप सिंधो की, सुमन, विजय प्रताप सिंधो की कोरियोग्राफी में उन्होंने ऐसा, तुम अगर हमारा हेड्रेस को भी देखोगे ना, वहां भी सिंबॉलिकल है, हेड्रेस को भी देखोगे वहां भी सिंबॉलिक है। तो उन्होंने संपूर्ण चीज को नहीं लाते थे, वो ना कहीं अपना एक दिमाग लगा के उसमें सिंबॉलिकल वे में उसको रिप्रेजेंट करते थे। दूसरी चीज, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखो ये डांसर के लिए और थिएटर के लिए बहुत अच्छी चीज है कि जिसे हम सेंटिमेंट्स कहते हैं, जिसे हम रस कहते हैं, जिसकी अनुभूति हमें भी होती है और ऑडियंस को भी होता है, दोनों को होता है। मेरे हिसाब से अगर आंगिका अभिनय आप करते हो, अगर शरीर का काम करते हो, तो आपको जानना चाहिए कि कौन सा ऐसा रस है जिसमें शरीर खुलता है, कौन सा ऐसा रस है जिसमें शरीर छोटा होता है। 4 ऐसा रस है जिसमें बॉडी खुलता है, 4 ऐसा रस है जिसमें बॉडी छोटा होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको हर सेंटिमेंट्स का अभिनय आप कर सकते हो। आप कभी हंसना ऐसे कर वो पागल बोलेंगे हंस रहा है वो पागल बोलेंगे हंस रहा है। अगर खुलना है तो बॉडी खुल के हंसोगे ना, डरना है तो एक भय के लिए बॉडी छोटा होगा, ऐसे कोई नहीं डरता है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभिनय सिखाई नहीं जाती, अभिनय आपको खुद को सीखना पड़ेगा, आपको अनुभव करना पड़ेगा, आपको हृदयंगम करना पड़ेगा, पूरे लेकर, शरीर से लेकर। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि किसी ने कहा है
किसी ने कहा है, शास्त्र में ही लिखा हुआ है, किसने कहा, शास्त्र में ही लिखा हुआ है, किसने कहा कि मौखिक जो भी हम बोलते हैं, वाचिक, म्यूजिक, नृत्य, ये तीनों चीज जब हम पेश करते हैं स्टेज पर तो एक एक ऑडियंस की शरीर में वो टकराता है और टकराने के बाद उसकी कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जो सुषुम्ना है ना, कुंडलिनी शरीर में जागृत होती है और वो जब जागृत होती है तो इंसान को परम आनंद की प्राप्ति होती है। वही ऑडियंस को नहीं मिलेगा तो तू डांसर नहीं है, तू एक्टर नहीं है, तू कुछ नहीं है। ये जरूरी है कि उस आनंद को मिलने तक तेरे को पहुंचाना है, तेरे को प्रयास करना है। मैं तो यही सोचता हूँ बेटा, मेरे सही है। एकदम सही बताया शशिधर जी। और इतना बड़ा स्पीच, मतलब कैसे टाइम गुजर गया ये पता नहीं चला। बिल्कुल नहीं। সত্যি সত্যি কোথা থেকে যে সময়টা চলে গেল, এত সুন্দর বলেন। सुनिए, एक एक एस्पेक्ट के ऊपर एक दो दिन निकल जाएगा अगर बात किया जाए। তো এই জন্যই আপনাকে সত্যি সত্যি আবারও প্রণাম জানাতে হয় যে শিক্ষক শুধু নৃত্যশিল্পী নন, যথার্থ অর্থে শিক্ষক। আশা করি আজকে যারা দেখলো তারা সত্যি কিছু জানতে পারলো এখান থেকে। আর আপনাকেও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের ক্রিয়েটিভ ডান্স ওয়ার্কশপের পক্ষ থেকে। এভাবেই আমাদের সাথে থাকবেন, যতদিন আপনার সাথে থাকবো, আপনার কাছাকাছি থাকবো, অনেক কিছুই জানতে পারবো। देखिए, मैं जितने दिन तक सुन लीजिए, मैं जितने दिन तक जीवित हूँ केवल कला के जीवित हूँ और ये कला को ही करते हुए मेरा अभिप्राय है। मैं नहीं, मैंने अपने आने वाले भविष्य को प्यार कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी प्यार कर रहा हूँ। জানি না কতটা নিতে পারবে সবাই, কিন্তু আমরা সমৃদ্ধ হচ্ছি, আমরা অনেক জ্ঞান অর্জন করছি, এটাই হচ্ছে বড় কথা। আপনারা আছেন তাই আমরা কাজ করব, এই ভাবনাগুলো নিয়ে এই ভরসাটাও করতে পারি। আমরা আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাই, প্রণাম জানাই এবং আমরা আমাদের লাইভ এখানেই শেষ করছি।